ایسی روایات قصہ فارینہ بنتی جا رہی ہیں وسیم صاحب ہیں۔ ہر شخص کو ان کی اور اس کی اوقات کے برابر یا بڑھ کر پروٹوکول دینا، مخالفین سے بھی خندہ پیشانی سے پیش آنا اور دوسروں کی اخلاقی، مالی، علمی، ادبی، نظری، فکری ہر قسم کی سپورٹ کرنا ان کا وتیرہ بلکہ پیشہ ہے۔ اپنے سے چھوٹوں سے اپنے سے بڑوں جیسا احترام کرنا کوئی ان سے سیکھے، کبھی نہیں کرتی۔ صوفیاء کرام کی معنوی صحبت میں رہنا، اکثر اوقات کل من علیہا فان کا ورد کرنا اور بار بار شاہ حسین کا یہ شعر زبان پر لانا، کہے حسین فقیر نہ مانا میں ناہی سب تو، اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ فنا کی منزلوں کے راہی بن چکے ہیں۔ جنریشن گیپ ایک بہت بڑی حقیقت ہے، لیکن مقصود حسنی اس حقیقت کو ایسے جھٹلاتے ہیں جیسے دن رات کو جھٹلا دیتا ہے۔ جیسے ذہن اور زبان کی کمپنی ملے ایسے ہی ہو جاتے ہیں، پھر کوئی خیال پیری قریب نہیں پڑتا، بلکہ ایسے جاپتا ہے کہ شباب کی باتوں کا مزہ پیری میں ہی آتا ہے۔ اور یہ شعر اس طرح ہونا چاہیے: وقت پیری شباب کی باتیں، مہکدہ پیمانہ شراب کی باتیں، آش نراش کے دو رنگوں سے دنیا تو نے سجائی، یہ دنیا ایک سرائے ہے، یہاں کا ہر گھر، ہر ادارہ، ہر مقام ایک سرائے ہے، یہاں سے ہر کسی نے جانا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ کوئی آج آ رہا ہے تو کوئی کل، حکم سب کے لیے ایک ہے، لیکن جانے جانے میں فرق ہے۔ ایسے ظالم محبوب بھی تو ہوتے ہیں جو سارا شہر ویران کر جاتے ہیں، جن کا خلا مہر و ماہ بھی پورا نہیں کر سکتے، لیکن اتنے پیارے جدا ہی کب ہوتے ہیں۔ کتنے حسین لوگ تھے جو مل کے ایک بار آنکھوں میں جذب ہو گئے، دل میں سما گئے۔ ہمارے ہاتھ شاہ صاحب کے لیے خدا کی بارگاہ سے ہمیشہ مہربانی مانگتے رہیں گے۔ ان سے بھی گزارش ہے کہ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ ہماری خدمات کل بھی ان کے لیے حاضر تھیں اور آئندہ بھی رہیں گی۔ ہم کل بھی ان سے رہنمائی لیتے تھے اور کل بھی لیتے رہیں گے۔ یہ رشتے رسمی نہیں جو ٹوٹ جائیں، بلکہ قلبی ہیں جو اٹوٹ ہوتے ہیں۔ شکریہ۔ سر انہوں نے ریپرزینٹ کیا ہے وہ ان کی دلی وابستگی کا اظہار۔ ان کی تقریر میں ایک شعر تھا، بلکہ ایک مصرع تھا کہ جس کا وہ میرے فوراً ذہن میں نظر آئی کہ یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا، تیرے وعدے پر تھے ہم تو یہ جان جوڑ جانا کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا۔ یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناصر، کوئی چار سال ہوتا کوئی غم گسار ہوتا۔ یہ وہ کیفیت ہے جو ان کے اوپر اب وارد ہے، اور اس وقت جو جدائی کے لمحات ہیں میں ان کو پکچرائز نہیں کر سکتا، یہ جانے والا ہی جانتا ہے کہ یہ لمحے کتنے ایگنائزڈ اور اینگوشڈ ہوتے ہیں، جن کو کیپچر کرنا اور اپنی زندگی کا اثاثہ بنانا کتنا مشکل کام ہے۔ انہی کے قریبی دوست انہوں نے بھی ان کے اوپر بڑی تحقیق کے ساتھ آرٹیکل لکھا ہے۔ اگر آپ ادب کا مطالعہ کریں، بلکہ کئی رسالوں میں ان کے مضامین چھپتے ہیں، اور قرۃ العین حیدر پر ان کا بہت زیادہ مطالعہ ہے، اور اس وقت ماڈرن دنیا میں اس کا نام ہے۔ میری مراد یونس حسن صاحب سے ہے کہ وہ آئیں اور اپنا مطالعہ جناب سردار نعیم صاحب، جناب فضل بٹی صاحب، اور محترم جناب عبدالرشید حسن صاحب، اور میرے نہایت ہی واجب احترام اساتذہ کرام، السلام علیکم۔ آج ہم جس عظیم شخصیت کو الوداع کہنے جا رہے ہیں وہ ایک شخص نہیں،
वो एक अंजुमन है, बल्कि अगर मैं यूँ कहूँ कि तहकीकी तनकीदी लिसानी जो खिदमात हैं, जो सफ़र है, वो 40 साल से ज़्यादा अरसे के ऊपर मुहित नज़र आता है। इन 40 सालों में शाह साहब ने अगर किसी चीज़ से अपना नाता जोड़ा है तो वो कलम है, और इस कलम को अपने इजहार का और किसी की मददगारी नहीं की है, बल्कि तहकीक की जो कठिन मंजिलें हैं उनको अपनी मेहनत से सर किया है। मेरी मुराद गालिब, उसकी मुराद आप गालिब को कह सकते हैं कि शाह साहब का ज़्यादातर जो काम मैंने पढ़ा है वो उनका गालिब के ऊपर है। 200 से ज़ायद मकालात जो हैं उनके छप चुके हैं, और तकरीबन 3 किताबें, जो 2 तो उनकी, एक तो उनका PhD का मकाला है जिसका जो मौजूद है वो गालिब के तहजीबी, तमद्दनी, लिसानी जो जावी और साख्तियाती जो जावी हैं उनके ऊपर है, और दूसरा जो उनको पोस्ट PhD के ऊपर जो उनको डिग्री मिली है वो जापानी आवाज़ों का निज़ाम है। ये कितनी, मैं समझता हूँ कि ये हमारी वो हस्ती है कि जिन्होंने, मैं समझता हूँ जो मैं एक बहुत कम इल्म रखने वाला एक इंसान हूँ कि पाकिस्तान में जापानी ज़ुबान पर इतना बड़ा काम जो है किसी बड़े मुहक्किक ने नहीं किया जितना शाह साहब ने किया है। और अंग्रेज़ी ज़ुबान है और कई और ज़ुबानें हैं जो इनको इंटरनेशनल लैंग्वेजेस पे इनको काफ़ी हद तक अबूर है, और ये हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है, हमारे इदारे के लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि शाह साहब ने जापानी आवाज़ों के निज़ाम पर PhD की डिग्री ली। और उसके आगे चलिए, मैं ये वादी मुझे लाने वाले यही वो अजीम शख्सियत है जो मुझे तहकीक की वादी में लेके आई कि यार तुम पढ़ो, MPhil करो। और मैं यकीन माने कि मैंने जो MPhil का मकाला किया है सारे का सारा शाह साहब की निगरानी में किया है। मेरे निगरान नासिर फरोज साहब हैं, डॉक्टर नासिर फरोज साहब साइंस कॉलेज के हैं, और वो इस बात की तस्दीक करेंगे कि सारे का सारा मकाला मैंने शाह साहब की निगरानी में मुकम्मल किया और उनकी टेबल पर जाके रख दिया कि ये पढ़ लें, ठीक है। और यहाँ पर हमारे प्रोफेसर अमजद अली शाकिर साहब थे, उन्होंने मकाले को पढ़ा और उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें कि लेटर्स लिखे, मेरे मकाले के असल निगरान जो हैं वो शाह साहब। तो मैं समझता हूँ कि हम तो इनका जो खिदमात है उनका इदराक ही नहीं रखते कि कितने बड़े इंसान हैं। तो ये एक मेरा ज़ाती हवाला जो है उनके साथ है। तो जब भी मैं गया हूँ, रात है दिन है, उन्होंने कहा कि बेटा मेरे घर के दरवाजे आपके लिए खुले हैं, तुम जब मर्जी आ जाओ, रात को आ जाओ, दिन को आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए मौजूद हूँ। तुम्हें कोई किताब चाहिए, कोई मैगजीन चाहिए, कोई पुराना अखबार चाहिए, क्या तुम्हें चाहिए, जो कुछ मेरे पास है, मेरी लाइब्रेरी में है, वो तुम्हारे लिए खुला है। और ये बात जो है ये कोई मुबालगा ही नहीं है। मैं जब भी गया हूँ, सुबह गया हूँ, शाम को गया हूँ, तो ये मेरे लिए पहले ही मौजूद थे। मैंने इनको कहा कि शाह साहब मैं आ रहा हूँ, मैंने फलां की समझनी है, तो उन्होंने कहा कि भाई आ जाओ, रात को 10 बजे। तो जिस तरह हकीकी बाप होते हैं ना, अपने बच्चों के लिए पेन लेते हैं, इन्होंने मेरे लिए इस तरह से पेन लिए। तो मैं समझता हूँ कि मैं अपने हकीकी वालिद की तरह, बिल्कुल अपने हकीकी वालिद की तरह मैं इनका एहतराम करता हूँ, और इंशाल्लाह जब तक जीऊँगा इनका एहतराम करता रहूँगा। अब हमारे किस खित्ते का बंदा है, उन्होंने हर एक के साथ एक जैसा सलूक किया, उनमें तासुब नहीं है, क्रोध नहीं है, नफरत नहीं है, अगर कुछ है तो सिर्फ प्यार है, सिर्फ मोहब्बत है, और इस मोहब्बत को उन्होंने हर सतह पे आम किया है। आपने कॉलेज में देखा होगा कि कॉलेज में किसी बंदे ने सबको मिल रहा कि अगर किसी बच्चे की फीस रह गई है वो ये नहीं कर सकता, तो मैंने जितना बेकरार इनको देखा है कि यार किसी तरह से इसका असबाब पैदा किए जाएं, इसके लिए पैसे मुहैया किए जाएं, ठीक है ना यार, ये इसकी फीस नहीं जाएगी तो ये बच्चा जो है पीछे रह जाएगा। ये नहीं, जिस तरह हकीकी तड़प वालिदैन के लिए अपने बच्चों के लिए होती है, ये हमारे कॉलेज के बच्चों के लिए ऐसी तड़प रखते हैं अपने दिल के अंदर। और मैंने नहीं देखा कि कोई इनके पास बच्चा गया हो और इन्होंने किसी को वापस भेज दिया हो कि मैंने आपका काम नहीं करना। इनके घर से कोई वापस नहीं गया। कॉलेज में तो ये सब के लिए मतलब है कि इतने
ज़्यादा इन्होंने बच्चों के साथ इनकी इंटरेक्शन रही है, साथ के साथ इनकी इंटरेक्शन रही है, और आप सब लोग जानते हैं कि किस तरह से ये मोहब्बतें बांटने वाले और मोहब्बतों के सफ़ीर हैं। मैं समझता हूँ अगर मैं ये कहूँ कि ये मोहब्बतों के सफ़ीर हैं तो ये बात गलत नहीं होगी। और ये मोहब्बतें इन्होंने हर एक के अंदर बांटी हैं और इसमें कोई इम्तियाज़ नहीं बनता है। और ये मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा हसास भी हैं, बहुत सी बातें महसूस करते हैं, अगरचे इजहार नहीं करते, लेकिन मैंने इनसे ज़्यादा हसास कोई इंसान नहीं देखा है। फिर जब कभी अकेले में बैठते हैं तो फिर कई बार उनका इजहार भी होता है, और तड़प जो मैंने अपनों के लिए, बेगानों के लिए उनके अंदर देखी है, मैंने शायद किसी के अंदर इतनी नहीं देखी है। ज़ात का सबसे बड़ा हवाला है, पहचान है, और मेरा ख्याल है कि यही सूफिया की सब बड़ी पहचान होती है। मैं समझता हूँ कि अंदर से मकसूद हसनी जितना बड़ा सूफी मुझे नजर आता है, मैंने कम ही ऐसे सूफिया देखे हैं जिनका बातन इतना उजला हो, इतना शफाफ हो, इतना पकीज़ा हो, जितना जो बातन है मैंने मकसूद हसनी का उजला, पकीज़ा और रोशन बातन मैंने देखा है। मैंने कम लोगों का इतना बातन रोशन देखा है। और आपने देखा कि और एक जो थोड़ी सी एक और बात मैं इस हवाले से करना चाहता हूँ, टाइम और लूँगा आपका। उनकी जो तख्लीकात हैं तकरीबन 30 के करीब उनकी किताबें छप चुकी हैं। उनमें और आप हैरान होंगे कि शाह साहब का जो आगाज़ है, तख्लीकी जो सफ़र है, वो बतौर अफसाना निगार के हुआ है। उनकी 3 किताबें छप चुकी हैं अफसाने की, और मुझे ये पता नहीं है कि वो अफसाने को छोड़ के तहकीक के खुश मैदान में चले आए और गालिब के एक मुश्किल टॉपिक को उन्होंने अपने लिए चूज़ कर लिया। बहरहाल ये आज तक ये बात इसरार के पर्दों में है। बुनियादी तौर पे तख्लीकार है, मुहक्किक बाद में बने, नक़ाद बाद में बने। पहला जो उनका सबसे बड़ा हवाला है वो तख्लीकार का हवाला है, और उस हवाले से यानी 3 उनके अफसाने में छप चुके हैं। और जब उन्होंने अफसाने लिखने शुरू किए, अगर आप उनके अफसाने पढ़े हैं या आप तक उनकी किताबें पहुँची हैं, तो उस दौर के जो बड़े बड़े रसायल हैं, जैसे अब्दुल लतीफ़ है, जैसे बयाज है, जैसे सीब है, ठीक है ना जी, ये जैसे अदब दोस्त है, ठीक है, वो छपते रहे, बतौर अफसाना निगार छपे। यानी 1 दर्जन के करीब मैंने उनके अफसाने पढ़े हैं, जो मुख्तलिफ यानी शरीर में, कराची में बहुत बड़ा एक पर्चा निकला करता था, आजकल बंद हो गया, तो शरीर में उनके अफसाने छपा करते थे। और एक अलामती अफसाना उनका जो है वो उस साल का गालबन 1988 या 90 का नुमाइंदा अफसाना करार दिया गया। उनका एक अलामती अफसाना उस दौर में छपा था। जर्द का जो पहला उनका अफसाना हुआ है वो अकेली थी, दूसरा है और तीसरा है जिस हाथ में लाठी। तो 3 उनके अफसाने भी छप चुके हैं, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तमाम तख्लीकात को मुताला किया है। और बतौर शायर अगर आप दूसरा हवाला जो सबसे बड़ा हवाला है वो उनका शुमार होता है कि नसरी नज़म जिन लोगों ने शुरू की, आज उसके ऊपर बहुत तनकीद हो रही है। नसरी नज़म जो है वो जान से बाहर है, उसमें बहूर नहीं है, उसमें वज़न नहीं है, तो बड़ी तनकीद होती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जितनी अच्छी नसरी नज़म शाह साहब ने लिखी है, ये उनके बानियों में है, कि अगर आपको पढ़ेंगे तो आपको उसका अंदाज़ा हो जाएगा। तो उस हवाले से और ओट से उनकी पहली जो नसरी नज़मों का मजमूआ छपा था, सूरज को रोक लो, ये दूसरी उनकी नसरी नज़मों का मजमूआ था। और फिर शेरियात ख़याम के नाम से उन्होंने ख़याम की जो रुबाइयाँ हैं उनको उर्दू पैराहम दिया। ये शाह साहब का बड़ा कमाल है। अगर आपने ख़याम को पढ़ना हो तो उनकी रुबाइयों को पढ़ लें, तो मेरा ख्याल है कि ख़याम की जो सोच है, जो ख्यालात हैं, जो उनकी शायरी के अंदर आ रहे हैं, वो आपको पूरी तरह से उसमें मिलेंगे। है कि शाह साहब लसानियात के माहिर हैं, कई ज़ुबानें जो इलाक़ाई हैं, कई बोलियाँ जो इलाक़ाई हैं, ठीक है ना, वो उनके जहन में उन्होंने पढ़ा है 10 तरह से उनको, इसलिए उनके लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो उसके बाद हम चलते हैं थोड़ा सा बहुत तहकीक में हम चलते हैं। तहकीक में उनकी 3 किताबें छप चुकी हैं। तहरीकात उर्दू अदब तकरीबन 350 सफ़े की एक किताब है, बहुत बड़ी किताब है उनकी। दूसरी किताब उनकी तहकीक है उर्दू शेर फ़िक्री व लसानी रवैयी है, उर्दू में नई नज़्म, इसके ऊपर उन्होंने बड़े दलाइल दिए हैं। बल्कि मैं समझता हूँ कि ये एक इतनी बड़ी किताब है कि एमफिल का एक मकाला महसूस होती है, बहुत बड़ी किताब है। उसके बाद हम बात करेंगे उनके बतौर नक़ाद के, यानी बतौर क्रिटिक उनका बड़ा मुकाम है हमारे अदब में, उर्दू अदब में उनके बहुत से तनकीदी मकालात छपे हैं। तो किताबों में तनकीदी उनकी है मरीनुद्दीन के अफसाने, तनकीदी मुताबिक
تخلیقی و تنقیدی زاویے یہ بھی چھپ چکی ہے، اور اصول اور جائزے یہ وہ کتاب ہے جو ہمارے جائزے، تو 3 کتابیں بطور نکات کے ظاہر ہے جاپان سے ہمارے ملک میں آئی ہے، تو یہ بدیسی صنف ہے، ٹھیک ہے نا، ہمارے دیش کی صنف نہیں ہے، لیکن آپ جانتے ہیں جس طرح سے آئی کل ہاکو لکھی 3 مصر کلچر پہ رنگ دیا ہے، ہمارے اس معاشرتی اور تہذیبی جو ہماری روایات ہیں اس میں اس کو رنگ دیا ہے، تو اب یہ بدیسی محسوس نہیں ہوتی ہے، اب یہ لگتا ہے یہ ہمارے کلچر کی، ہمارے یہاں کی سیٹ اپ کی، ہمارے تہذیبی روایات کی آئینہ کار ہے یہ سے جب یہ چھپا تھا مجھے یاد پڑتا ہے بہت سے خطوط شاہ صاحب کو اس کے چھپنے کے اوپر ملے تھے، وہ آج بھی خطوط ان کے ریکارڈ میں موجود ہیں، ہمارے بہت سے میرا خیال ہے کہ سینکڑوں میں خطوط ہیں جو ان کی ہر کتاب 500 صفحے کی کتاب بن جائے گی ان کی، اتنے بڑے خطوط اور بڑے بڑے نام اور محققین کے خطوط، شاعروں کے، تخلیق کاروں کے خطوط آئے گی، اور کرنل محمد خان جیسے بڑے جو ہمارے مزاح نگار ہیں ان کی آپ کو یاد دلائے گی، اور اس میں وہ ہنساتے ہیں، کبھی زیر لب ہنساتے ہیں، اور کبھی انسان جو ہے وہ ایسی ہنسی اس کے اندر سے پھوٹتی ہے کہ جس کا بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس حوالے سے بطور مزاح نگار بیکری کی دربا ان کی ایک یادگار اور باقی رہنے والی کتاب ہے۔ اچھا، ترجمے کا جو فن ہے مشکل فن ہے، اور خاص طور پہ جب کسی اور بدیسی زبان کو اپنی زبان میں ڈھالنا ہو، بدیسی زبان کی شاعری کو اپنی زبان میں ڈھالنا ہو تو یہ اور مشکل ہو جاتا ہے۔ ستارے بنتی آنکھیں یہ ترک شاعری ہے جس کا شاہ صاحب نے اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ ستارے بنتی آنکھیں محسوس نہیں ہوتا کہیں پہ کہ اس کے اندر جو بدیسی فضا ہے جو نظر آتی ہے ہماری ہی فضا کا وہاں پر آپ کو جذبہ محسوس ہوگا، تو یہ ترجمے میں ان کا بہت بڑا کام ہے۔ تو ستارے بنتی آنکھیں جو ترک شاعری ہے شاہ صاحب نے ان کا اردو میں ترجمہ کیا ہے، اور کمال مہارت سے کیا کہ محسوس نہیں ہوتا کہ یہ ترک شاعری ہے، یہی لگتا ہے یہ ان کی اپنی شاعری ہے۔ ایک تو جاپانی آوازوں کے نظام پہ ان کو ملی ہے ڈگری پی ایچ ڈی کی، اور پوسٹ پی ایچ ڈی کا جو مطالعہ ہے وہ غالب کے ساختیاتی، تفہیمی اور لسانی زاویے اس موضوع میں ان کو پوسٹ پی ایچ ڈی کا جو ڈگری ہے وہ مل چکی ہے۔ اور آخری جو حوالہ ہے وہ ہے کالم نگاری کا، اور بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے کہ شاہ صاحب نے تقریباً 10 سال کالم نگاری بھی کی، اور یہ کالم نگاری جو ہے جب مطلب ہے کہ یہ مشرق چھپتا تھا، امروز چھپتا تھا، آفاق چھپتا تھا، آج وہ اخبار نہیں چھپتے ہیں، تو شاہ صاحب نے کچھ 60 کے قریب 60 سے 65 جو میں سمجھتا ہوں کالم ہیں وہ چھپے ہیں۔ یہ مختلف یہ جو آپ کا اخبارات کا میں نام لے رہا ہوں اس میں مساوات بھی ہے، اور ان میں ان کے چھپ چکے ہیں۔ بعد میں جب مارشل آیا تھا تو انہوں نے کالم نگاری درج کر دی تھی، تو تقریباً، اور اگر یہ کالم نگاری ہوتے تو میرا خیال ہے یہی سب سے بڑا ان کا حوالہ بن جاتا۔ انہوں نے کالم نگاری 70 سے 80 کی دہائی میں انہوں نے کافی کی ہے، اور تقریباً 65 سے 70 ان کے کالم ہیں یادگار ہیں، کتاب بن سکتی ہے ان کے کالموں کی، یہ بہت بڑا حوالہ ہے شاہ صاحب کا۔ اور آخری جو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی بات ہے لسانیات کی، تو اس میں آپ شاہ صاحب جتنا بڑا عالم، بڑا اسکالر میں نے نہیں دیکھا کہ جو زبان کے اتنے اثرات کو سمجھتا ہو۔ اب بات کریں کہ فلاں شاعری یہ لفظ کہاں سے آیا ہے، تو شاہ صاحب بتا دیں گے کہ یہ لفظ جو ہے فلاں زبان کا ہے، فلاں زبان سے سفر کرتا ہوا اس طرح سے ہمارے جو ہے وہ شاعری میں آیا ہے۔ تو یہ بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وزڈم دی ہے، دانش عطا کی ہے، اور انہوں نے محنت بھی بہت کی ہے، کھوج بھی بہت کی ہے۔ آج بھی نیٹ کے اوپر سب سے زیادہ جو لسانیات کے اوپر بحث ہو رہی ہے، لسانیات کے اوپر جو مقالے لکھے جا رہے ہیں، وہ سب سے زیادہ شاہ صاحب کے آپ اور ڈبیٹ کر رہے ہیں، یعنی وہ تمام جو نظریات پہلے پیش کیے جا چکے ہیں شاہ صاحب نے بہت سو کو رد کیا ہے۔ اردو زبان سمجھ، اردو زبان کو طور مثال لے لیں تو اردو زبان کے ارتقاء کے حوالے سے بہت سے نظریات پیش کیے جا چکے ہیں۔ ہمارے ساتھی بہت سے محقق یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ یہ بہتر سمجھتے ہیں، تو بہت سے مقالے یعنی لکھے جا چکے ہیں۔ تو شاہ صاحب نے اردو زبان کے حوالے سے ایک نئی تھیوری دی ہے، اور وہ نئی تھیوری جو ہے انٹرنیٹ پہ زیر بحث آ رہی ہے کہ اردو زبان کیسے بنی۔ ہمارے خابن شیرانی صاحب ہیں، سید سلیمان ندوی ہیں، اور نصیر الدین ہاشمی صاحب ہیں، بہت سے لوگوں نے اس پہ کام کیا اردو زبان کے ارتقاء کے حوالے سے یہ کیسے بنی، اپنی تھیوریز پیش کی ہیں۔ شاہ صاحب نے اپنی تھیوری دے دی ہے کہ اردو زبان کیسے بنی ہے، اور بہت سی تھیوریز کو رد کر دیا ہے، اور رد زبانی کلامی نہیں کیا ہے، بڑی دلیلیں نہیں ہیں۔
तो मैं समझता हूँ कि ये वही बंदा कर सकता है जिसको ज़ुबान के ऊपर बड़ी ज़्यादा महारत हो। तो मेरे सबसे बड़ा आखिरी हवाला था, मेरी दुआ है अल्लाह ताला हमारे यानी इस बहुत बड़े सरमाए को महफूज रखे। शाह साहब के साथ हमारी ज़िंदगी जुड़ी हुई है, अल्लाह ताला इनको खुश रखे, इसको आबाद रखे और हम इंशाअल्लाह इनसे मुस्तफ़ीद होते रहेंगे और इनके इल्म से की आगही से फ़ायदा लेते रहेंगे। जब बिजली नहीं थी और आप भी हैरान होना, मेरी मुराद मोहतरम डॉक्टर अरशद साहब से है कि वो दाइस पे हैं और मुख्तसर अल्फाज में अपने ख्याल में डॉक्टर सैयद मकसूद हसन साहब, सरफराज मोइन साहब और ये मेरे साथ उस्ताद मोहतरम बुजुर्ग और बाप का मेहनत जितना पढ़ना सीखा है, जिस तरह आज बाशी साहब नवाशी साहब कहते थे गवर्नमेंट कॉलेज काम नहीं हो रहा, पंडित इस्लामिया कॉलेज आज दुनिया ਦੀਆਂ 120 यूनिवर्सिटियां और इंसानियत नाल कौमां की पहचान होती है। इंसानियत जबान को कहते तो जबान पर काम करना कोई आसान नहीं है। शाह साहब वो हस्ती ने जिन्हों से गुरु नानक यूनिवर्सिटी में PhD का मुकाबला लिखा गया, शायद तो मालूम नहीं। ये साढ़े वास्ते गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज कसूर वास्ते कितने एहसास ही कर रहे। इस यूनिवर्सिटी में PhD का मुकाबला लिखा गया। नैट से शाह साहब के पढ़ने वाले तादाद हज़ारों च नहीं लखों में हसन साहब वास्ते कि जैकब साहब ने अपने मुकाबले आख्या साहब के उत्ते यूनुस साहब ने बड़ी लंबी चौड़ी माशाअल्लाह बहस की है, तो शायद ही कोई कोना बचा हो जिससे उन्होंने गल नहीं की, लेकिन एक कादर इलमी ते अरबी कादर भावना दफ्जा के वास्ते नहीं अपने नाम जिंदा कर गए। तो डॉक्टर साहब का नाम भी इंसानियत के हवाले नाल बहुत नुमाया है। इंसानियत में इंग्लिश बारे चाहते और इन्होंने रेफरेंस लंदन दी यूनिवर्सिटियां में जा कर सकते हो। मेरी सिर्फ एक तजवीज़ आ कि लखा आर्टिकल डॉक्टर साहब ने लिखे हुए नैट मैं प्रिंसिपल साहब की खिदमत में एक रिक्वेस्ट करांगा कि जिस तरह अज गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज कसूर ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇਆ ਕਾਲਜ बन गया, इस तरह मैं चाहांगा कि दुनिया के गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज कसूर एक नुमाया कॉलेज बन जाए और दुनिया के मिसाल दी जाए कि पाकिस्तान के बाद कसूर दूसरा किसी और मेरी तजवीज़ ये कि डॉक्टर मकसूद हसन साहब के नाम की एक लिटरेचर जो सर्च स्कॉलर आन और इंसानियत कंप्लीट सर्च स्कॉलर 2-4 नाम है जिन्होंने डॉक्टर साहब के होर एक दो नाम है। ग्रेव्स जॉर्ज ग्रेव्स ने काम किया पंजाब च आके फलस्तीन च आके और उन्होंने पूरी दुनिया की जबानों से काम किया। लिहाजा मैं रिक्वेस्ट करता अपने मोहतरम प्रिंसिपल साहब कि डॉक्टर साहब के नाम से कसूर कॉलेज एक मकसूद हसन चेयर कैंप की जाए जिथे डॉक्टर साहब का पूरा मटीरियल पूरी किताबां रखिया जान, दुनिया के रिसर्च स्कॉलर आन और उतो फैल जाप हो। तो इत्थे ही मैं डॉक्टर मकसूद हसन साहब को भी रिक्वेस्ट करांगा कि अपना जिंदगी का सफर सारा आदमी का खत्म हो जाता है। जिस तरह कि हर आदमी आ रहा है फिर मैं चले जाना, एक रीत है दुनिया के रस्म है कि जो पैदा होया उन्हें जाना। जिस तरह मियाँ साहब ने कहा दोनों भांडा भरदा की जे तुम भांडा भरना शाम पई फिर शाम के अंदर घर जाती नहीं करना। असासे जिन्हें कम अपने असासे अपने एसेट्स संभाल के रखते हैं वो कम हमेशा जिंदा रहती है, तरक्की करते हैं। अगे मैं डॉक्टर साहब की खिदमत से रिक्वेस्ट करांगा कि डॉक्टर साहब के कोले हज़ारों की तादाद प्रिंसिपल साहब ने रिक्वेस्ट की चेयर वास्ते उत्थे अपना किताबों का असासा गवर्नमेंट इस्लामिया का कसूर रिलेट करना एक फरमान जारी कर मैं ये आपकी शेयर चमन बेनती कर
बज़्म इश्क यक तनाए रास आयत बनूं, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर होती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीद और घर पैदा। कहना यही चाहते थे कि ऐसी हस्तियाँ बार बार नहीं आती, लेकिन इस हस्ती को मैं बुला रहा हूँ। उनके हवाले से आप सुन लें कि कितनी आंखों में उतर कर निकल आया हूँ, कितने चेहरे मेरे मयार से कम कर निकले, कितने खुदसर तेरी नज़रों की हिरासत में रहे, एक कमी थे जो तेरी आंख से बाहर निकले। इंग्लिश डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट मोहतरम मोहम्मद सईद भट्टी और प्रिंसिपल साहब और मेरे अजीज वफा साहब, अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि आपको पता है कि मैं तैयारी वगैरह तो होती नहीं है लेकिन मैंने आना नहीं था। 2 बजे भाग की बिना पर मैं यहाँ आया, ना आने की वजह और आने की वजह बयान करके चला जाऊँगा और आप फिर अदा करेंगे। ना आने की वजह ये थी कि एक तो लाइट नहीं थी पहले, और यूनुस हसन साहब और हमारे पंजाबी के बहुत बड़े अदीब अरशद शाहिद साहब, इन्होंने इतनी बातें कही तो उसके बाद कोई बात समझ में नहीं आती कि मैं क्या कहूँ। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि जितनी बातें इन लोगों ने कही, इससे पहले मैं शाह साहब की, लेकिन इतनी नहीं, लेकिन इतने मकाले और इतनी बातें सुनकर मैं मुतरिफ हो गया हूँ। ज़ाहिर ये झूठ थोड़ी बोल रहे हैं, ये नेट पे सर्च कहीं वो बिल्कुल सच हैं और 100% सच हैं। इंग्लिश तो मेरे मोहतरम है दोस्त हैं, लॉन में खड़े हुए थे और कह रहे थे कि मैं इंग्लिश वालों को अक्सर मशवरे देता रहता हूँ कि डिपार्टमेंट को इस तरह ठीक करें, इस तरह ठीक करें। तो प्रिंसिपल साहब इस बात के गवाह हैं। मैंने कहा सर, क़यामत की निशानियों में एक ये निशानी ये है ये और अगर आज हमने ये तीनों चीज़ें देखी हैं तो मकसूद मोहम्मद हसन साहब के अंदर ये तीनों चीज़ें मौजूद हैं और हमारे लिए खुशी की बात है कि हमने ये तीनों चीज़ें देखी हैं और हम मज़ीद साहब को बुलाने वाला हूँ। उनके बारे में आप शेर सुन लें कि तेरी चश्मे बास की खैर हो, इधर एक निगाह तो डाल दे, मेरी अक्ल होश को लूट ले, मेरी जान तन से निकाल दे, बड़े रह के सब्र नहास माँ, मेरी ज़िंदगी मेरे पास आ, मुझे ऐसा महवे जमाल कर कि अजल का वक्त भी टाल दे, तुझे इम्तियाज का वास्ता ये हिजाब कल्बो नज़र उठा, तेरी समत प्यार से देख जा, मुझे इम्तिहान में डाल दे। वही मस्त मस्त है साकिया जिसे मैं कशी का न होश हो, वही रिंद रिंद है असल में कि जो भर के जाम उछाल दे, तेरे मेहर मौत न जूम तो ये अंधेरा दूर न कर सके, तो ऐसी शक्ल बना के जो शब ज़िंदगी को उजाल दे। और यहाँ मेरी मुराद हमारे नफ्सियात डिपार्टमेंट के हम्माद साहब हैं, जो बावतन शायरी पढ़ते हैं तो सुरूर आता है, लेकिन उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी तरह